Namaskar, Orzu Dorkota Sardi. Welcome to Zara Initiative. Stay healthy, stay fine. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पूरे विश्व भर में एक महामारी फैली हुई है जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इस महामारी ने अभी तक करीबन 3.5 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया है and around 1 million deaths have been reported till now. इस महामारी की वजह से पूरा विश्व भर परेशान है और भारतवर्ष करीबन तीसरे नंबर पे पहुंचे। हमारे पास आज हमारे बीच में है जाने माने डॉक्टर विदेश नाइक साहब, नोडल ऑफिसर है मुडासा अरावली गुजरात। मेरे साथ मेरे को होस्ट है पंकज जी, ओवर टू यू। Hello, Namaskar, Orzu to Dorkat. So welcome viewers. So we have a new session, a subject which is actually discussed across the globe every hour, every minute, every second, the COVID. So no one, I think everyone is aware of this situation as of now. So as I share my statistics, so as on date, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 33 मिलियन केसेस ग्लोबली रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन विच इज ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल हैव डाइड. यूनाइटेड स्टेट्स has already topped the list which is at 7.1 million और ऑलमोस्ट 2 लाख डेथ्स वहां पे रिपोर्ट की गई हैं. नाउ द वर्स्ट सिचुएशन इज फॉर इंडिया which has come to as stage 2, in fact in stage 2, or you can say the number 2 in globally, with 6 million cases reported and almost 95 lakh people who have died of this COVID. So as everyone knows, this COVID was reported sometime in December 2019 from Wuhan, and WHO, World Health Organization, established it as an epidemic in January. And for India, actually, if you talk about India statistics, Maharashtra is the state which is having the severe issue of this epidemic with almost 1.3 million cases reported, and they are inching close to 35,000 deaths, which is huge. And then Andhra, then Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, and then Delhi at stage or 6th or 7th state. So as we talk about the total number of cases, so out of total 6 million cases reported in India, so almost 49 lakh cases have been recovered. So that's a good news, which is almost 82.5% of the cases. So, but the bad part is that almost we have lost 94,000 lives as on date. So the situation is very tough, exactly. And now we are talking about the second wave of epidemic, which is hit India already. So the cases are going to rise further as we have as all of the India is under unlock stage. So to deal with this situation, so we have invited Dr. Saab, Dr. Yagnesh, to take us forward and share us his experience during his past few months of services towards this COVID, and then what are the actions, what are the preventions method, and what are the things that we should take care of. So over to you, Dr. Saab. Please take it forward from here. Namaskar. Very good morning to all viewers, and thank you very much for inviting me in this precious session. Now we are in stage of pandemic situation, और जो कोरोना का जो हाहाकार मचा है 2019 के दिसंबर से जो शुरू हुआ है वुहान सिटी से, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोरोना नया वायरस नहीं है. कोरोना तो बहुत पुराना उसका नाता है इंसान के साथ. इसमें से 2 डेडली वायरस तो थे, एक सार्स कोरोना और एक मार्स.
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला। और ये 2019 में जो नया आया नोवल कोरोना म्यूटेशन होके उसमें से, तो ये जो नोवल कोरोना वायरस है उसका 75 to 80% स्ट्रक्चर जो है वो सार्स जैसा है, सार्स कोरोना वायरस। तो अभी ये 3 जो है वो डेडली रेस्पिरेटरी वायरसेस बोलते हैं। પેલી મારા કપડાનો વેટ કરીને બેઠી છે કે તું નહીં ના આવે એટલે હું કપડા हेलो। કાઢી हाँ, तो कोरोना वायरस जो है, अब तो पैंडेमिक सिचुएशन है, पूरा विश्व अभी इसके महामारी के खतरे से गुजर रहा है। सभी देशों ने लॉकडाउन किया, फिर धीरे धीरे अनलॉक भी करना पड़ा, क्योंकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट था इकोनॉमी का और ये सब, इसकी वजह से अनलॉक भी करना पड़ा। तो अब परिस्थिति ये है कि हम सबको अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जीना तो अब कोरोना वायरस के साथ ही है। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ कोरोना के हॉस्पिटल में। तो बहुत सारे सिनारियोस देखे, बहुत सारी चीजें देखी हमने। प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए अभी बहुत सारा नॉलेज सबके पास आ गया है। गूगल से मिलता है, व्हाट्सएप से मिलता है, फेसबुक से मिलता है, मीडिया से मिलता है। तो एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है आज के दौर में कोरोना वायरस क्या है, क्योंकि सब पिछले 6-7 महीने से इसको फेस कर रहे हैं, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो। तो अभी कोरोना वायरस जो है उसका थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या है ये वायरस और कैसे ये फैलता है। तो जो कोरोना वायरस है वो उसका जो मेन रूट ऑफ एंट्री है ह्यूमन के जो बॉडी में ये घुसता है, तो वो एक ओरल रूट है और एक नेजल रूट है। तो आंखों से भी घुस सकता है और आईज से घुस सकता है। तो ये जो है वो रूट है 3 कोरोना वायरस के शरीर में जाने के। और ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो बोलते हैं हम, ड्रॉपलेट की तरह से ये फैलता है। कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होते हैं, मान लो कि कोई कोरोना का मरीज है, वो अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके द्वारा जो वायरस है वो बाहर निकलता है ड्रॉपलेट में। और वो ड्रॉपलेट कहीं पर भी गिरता है या उसके संपर्क में जो भी आता है वो उसके साथ फिर रहता है और वो उस आदमी को फिर इन्फेक्ट करता है। तो कोरोना वायरस इस तरह से घुसता है शरीर में, फिर उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है कि अपने जो ओरल रूट है वहाँ फिर इसोफेगस में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, और उसका जो मिकोजा होता है उसके द्वारा अंदर जाने के बाद ये जो वायरस है वो सिम्टम्स पैदा करता है। 2 से 14 दिन इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इसका है। तो ये जो है उसमें फिर क्या होता है मरीज को कि पहले माइल्ड बुखार आता है, कुछ में बुखार नहीं भी आता, फिर एलर्जी होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, खांसी आती है, ड्राई कफ होता है, एकदम सीवियर वीकनेस आ जाती है, फिर स्नीजिंग होता है। ये सब सिम्टम्स, डायरिया भी होता है अभी अभी। ये सब सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो तो वी आर एडवाइज कि डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए। फिर जो कोरोना वायरस है उसका जो टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग की 3 मेथड है कि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं हम लोग, जो अभी सर्वेलेंस में बहुत ही अच्छा टूल है कि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट करते हैं उससे क्या है कि 10-15 मिनट में पता चल जाता है कि वेदर पेशेंट इज इन्फेक्टेड और नॉट विद द कोरोना वायरस। फिर दूसरा जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेस्ट है वो उसको क्या है कि 7-8 घंटे लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। तो RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट 7-8 घंटे में आता है। फिर दूसरा टूल एक है HRCT थोरेक्स,
जो है वो हम करवाते हैं। थोरेक्स का एक सीटी स्कैन हाई रिजोल्यूशन करवाते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है। और ये 3 टेस्ट से, और एक चौथा हम ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं कि ब्लड प्रोफाइल से हमको पता चलता है कि कुछ पैरामीटर्स उस ऊपर ऊपर नीचे हुए हैं कि नहीं। उससे हम अ, उसको कर सकते हैं कि भाई चलो इसको हो सकता है। तो ये 4-5 टूल्स है, उसके पता चलता है कि इसको है कि नहीं कोरोना का इन्फेक्शन। उसके बाद फिर सीवियरिटी जज करते हैं कि भाई इसको कैसा है डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज का जो है सिम्टम्स वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो कोरोना के जितने भी मरीज हैं हमने देखे हैं अभी तक, उसमें से 90-95% एकदम माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं पेशेंट्स, कि जिनको हम होम आइसोलेशन में रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट, कि जिनको इंडोर करना पड़ता है और उसको भर्ती करके फिर उसकी सारवार करनी पड़ती है। और तीसरे है सीवियर, वो 4 से 5% लोग हैं जिनको डिसीज जो है वो सीवियरिटी की ओर ले जाता है। उनका फिर क्या है कि ओल्ड एज वाले होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है, या प्रेगनेंसी होती है, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, मान लो कि डायबिटिक पेशेंट है, कार्डियक एलिमेंट्स है उनमें, उनमें कोई कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को इसका खतरा ज्यादा है सीवियरिटी की ओर जाने का। तो अभी हमारा जो पैंडेमिक है वो स्टेज 2 में तो है ही। आज आज का जो ट्रैकर है इंडिया का, वो 60 lakhs के आसपास है, इतना केस इंडिया में हो चुके हैं। और जो एक्टिव केस है आज के, वो 9 lakhs के आसपास है, 9 साढ़े 9 लाख के आसपास। रिकवर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होते। तो कोरोना जो है वो इस तरह से फैलता है, इसके ये टेस्टिंग करना इस तरह से करते हैं, फिर इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मेन चीज है प्रिवेंशन, कि प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि अब अनलॉक जो 5 चल रहा है कि 4 चल रहा है हमारा, उसमें सभी ओपन है, सब जहाँ भी जो जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन अब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। हमारा जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही डिपेंड करती है कि आपको अ, एक ही बंदा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा तो दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन अब है। और अभी होता क्या है कि घर में एक आदमी जाता है बाहर, वो बाहर से वायरस लेके घर में आता है, और जो वायरस लेके आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ही इज ऑल वेल, वो ऑल राइट होता है, बट ही वर्क्स एज अ कैरियर। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये लग जाता है। तो अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मान लो कि मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल्स है, वो तो सब ध्यान रख ही रहे कि भाई प्रिकॉशन वो जानते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि हर घर से जो बाहर जाता है, क्योंकि घर में से 1-2 आदमी होते हैं जिनको जाना पड़ता है कमाने के लिए, ये सब के लिए, तो वो जब भी घर आते हैं तो उनको ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे मेडिकल स्टाफ घर में जाके बिहेव करता है। तो घर के अंदर का जो है माहौल, वो पूरा कॉन्शियस ही रखना पड़ेगा। अभी कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं है, उसका ट्रायल्स चल रहा है। वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी खतरा ज्यादा बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, जो डाउन तो हो नहीं रहा। पीक अभी आया भी है कि नहीं आया वो भी पता नहीं है। जब मार्च में शुरुआत थी तब हमको ऐसा अंदेशा था कि इंडिया में उस वक्त 1500-2000 केस आते थे पर डे के। तब उस वक्त हमको ऐसा एजम्पशन था कि लाख केस पर डे आएंगे, 1 लाख के आसपास केस। तो अभी ये अगस्त और सितंबर में ऐसा हुआ कि 1 लाख के आसपास हर रोज के केसेस आने लगे।
तो अभी मेन चीज है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक बेस पे ले जाके उसको चेंज करना पड़ेगा कि हर वक्त कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जहां कॉन्शियसनेस हटेगी वहां कोरोना आपके अंदर आ जाएगा। अब क्या क्या कर सकते हैं हम मान लो कि घर पे क्या कर सकते हैं, बाहर अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाए तो क्या कर सकते हैं। सब लोग अभी जानते हैं कि भाई हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट, मास्क पहनना जरूरी है, 6 फुट की दूरी बनाए रखनी जरूरी है, लेकिन ये कर नहीं पाते। कैजुअल इतने हो गए हैं लोग आजकल कि हम देखेंगे अनलॉक हुआ कि बाहर अगर हम भी निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, गैदरिंग भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैदरिंग बंद हो गए, गैदरिंग भी हो रहे हैं। तो अब सेल्फ सीखना पड़ेगा, सेल्फ समझना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। कि मान लो कि घर में अभी सबसे ज्यादा कैजुअल इंसान घर में हो जाता है। बाहर से मान लो कि आएंगे तो नहा धो के चलो अब तो हमने नहा लिया, ये है तो वायरस चला गया। तो घर में सभी फैमिली मेंबर्स के साथ इतना कैजुअली बिहेव करने लगेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। अभी भी आपको घर में भी अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे भी 3-4 फुट की दूरी बनाए रखनी जरूरी है, क्योंकि कौन बाहर से इन्फेक्ट होके आता है ये पता नहीं चलता। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बाहर मान लो कि पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो पहली तो बात यह है कि अगर काम है आपका, निकलना जरूरी है, तो सोच लीजिए पहले 2 बार कि भाई मैं जो जा रहा हूँ वो क्या वाकई में जरूरी है जाना। अगर नहीं गया तो चलेगा, अगर चल सकता है तो बेटर टू स्टे होम। फिर भी अगर जाना जरूरी है तो बाहर जाइए तो देखिए कि आप किसी से भी 4-5 फुट की दूरी बनाए रखें। मास्क जो है वो अभी क्या है कि मास्क लोग पहनते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा सोचते हैं कि मास्क हम अपने लिए नहीं पहनते, पुलिस वालों के लिए, उनके लिए पहनते हैं, जो पेनल्टीज रखी है उसके लिए पहनते हैं। कई लोगों का मास्क जो है वो गले का हार बन जाता है, तो गले में लटका पड़ा रहता है। तो ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। जो मास्क है उसको प्रॉपर ही पहनना पड़ेगा। जब भी आप बाहर निकले तो जब बाहर जाके आए तब तक मास्क को निकालना नहीं है आपको। बिना मास्क के किसी के साथ भी बात नहीं करनी है, और सामने वाले ने अगर मास्क नहीं पहना तो उसको भी बोलना है कि भाई आप मास्क पहन लो पहले। मास्क पहनने के बाद भी आपको 2-3 फुट की दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो ये चांसेस है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, वो जब हम बात करते हैं एक दूसरे से या खांसी खाते हैं या छींक आती है तो उस वक्त ड्रॉपलेट जो है वो निकलते हैं हमारे शरीर से बाहर, तो उसमें वायरस आते हैं। अभी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है कि नहीं ये तो नहीं है साबित हुआ, लेकिन ड्रॉपलेट जो निकलते हैं वो 3-4 मीटर तक घूमते रहते हैं एयर सर्कुलेशन में। तो उसमें से फिर वो अगर ड्राई हो जाते हैं तो वो ज्यादा दूर तक भी जा सकते हैं। फिर बाहर दूसरी चीज ये है कि ऐसी कहीं भी अनक्लोज चैम्बर या अनक्लोज ऑफिस या अनक्लोज जो है एरिया, वहां ना जाए जहाँ एसी चालू है और अंदर की अंदर जो एयर है वो सर्कुलेट होती रहती है। तो ऐसी किसी भी जगह पे अवॉइड करना चाहिए अगर जरूरी नहीं है तो। और अगर जरूरी है तो विंडोज और डोर्स ये सब ओपन रखे। बातचीत करनी, मान लो कि 4-5 लोग बैठे हैं, बातचीत करनी जरूरी है तो क्लोज एनक्लोज चेम्बर का यूज मत करें। अभी पब्लिक जो अम्यूनिटी है, पब्लिक डोमेन है, उसका यूज मत करें। फिर ये सब सबको पता है कि लिफ्ट एलिवेटर्स के जो बटन्स होते हैं, डोर हैंडल्स होते हैं, ये सब जो है उसको टच ना करे जहां तक हो सकता है। करे तो मान लो कि लिफ्ट में जा रहे हैं तो आपके पास चाबी या कुछ है, उससे आपको प्रेस करना है बटन को। फिर बाहर भी अगर जहाँ भी हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है तो हैंड वॉशिंग आप करते रहिए। हैंड वॉशिंग में पता है कि जो हमारे आम साबुन होते हैं उससे भी अगर आप हैंड वॉशिंग करेंगे तो एज इफेक्टिव एज है, क्योंकि जो वायरस है कोरोना वायरस वो लिपिड का बना होता है। जो लिपिड हम वो चर्बी बोलते हैं, फैट, तो चिकना होता है तो वो साबुन से चला जाता है। उसमें 20 सेकंड तक अगर हाथ हम रब करेंगे अपने तो वो चला जाएगा। फिर बाहर गए हैं तो मान लो कि कहीं भी बैठना अगर आवश्यक नहीं है तो किसी भी कॉमन चीज पे मत बैठिए। बाहर जो बेंचेस होती है या कॉमन ये सब होता है तो वहां बैठने का अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारे पहले कौन बैठ के गया है वो हमें पता नहीं चलता।
फिर ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उसमें भी ख्याल रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मान लो कि आप बस में जा रहे हैं, रेल में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको डिस्टेंस रखना है, वो सोशल डिस्टेंस वाला कि भाई एक चेयर छोड़ के फिर बैठना है, मास्क तो रखना ही है, अननेसेसरी किसी जगह पे टच नहीं करना होता है। मास्क के फायदे भी है। मास्क से एक तो एयरबोर्न जो होता है ड्रॉपलेट का, वो 0.5 माइक्रोन से जो बड़े होते हैं उसको आने नहीं देता। और मास्क पहना होता है तो दूसरा एक हमारी ह्यूमन जो चलो बिहेवियर है, मान लो कि हाथ हमारे बार बार जो मुंह पे जाते हैं या आईज में जाते हैं, तो मास्क की वजह से ये भी थोड़ा प्रिवेंट होता है। तो मास्क नहीं निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी देखना है। फिर हमारी जो मान लो कि यूटिलिटीज है, पानी की बोटल्स है, तो ये कॉमन नहीं रखनी, हमें अपनी पर्सनल घर से ही कैरी करके जाना है और वही बोतल से पीना है। स्कूलों में यही दिक्कत होगी, अगर मान लो कि स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, आज नहीं तो कल करने ही पड़ेंगे, तो बच्चों को ये प्रिवेंशन का सिखाना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल रहेगा क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, मान लो कि रिसेस हुई तो भी साथ में खेलेंगे कूदेंगे, फिर लंच शेयर करेंगे, नाश्ता शेयर करेंगे, ये सब चीजें रहेगी। तो ये भी एक ख्याल रखना पड़ता है। तो बाहर तो पहले तो जाना ही नहीं है, अगर जाना जरूरी है तो ये सब चीजों के साथ जाएंगे। दूसरा, जब बाहर से घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद भी हमें पूरा एकदम कॉन्शियस रहना है। जो बाहर से आता है वो उसको डायरेक्टली सीधा अपने आप को नहा धो के फिर घर में आना है। और जो हर रोज बाहर जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि घर में आने के बाद भी वो लोग अपना अलग सा स्पेस एक आइडेंटिफाई कर ले और वहां ही बैठे पूरे घर में, क्योंकि घर के सभी लोग बाहर नहीं जाते। हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे बच्चे हैं, वो लोग हर रोज बाहर नहीं जाते, तो उनको हम बाहर से कोरोना ला के न दे दे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि नथिंग इज अवेलेबल आउटसाइड एक्सेप्ट कोरोना। मैं तो ऐसा बोलता हूँ हर एक को कि बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर कोरोना के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ये चीजें बाहर जाने के बाद और अंदर आने के बाद घर में फिर मान लो कि मैं बाहर से आता हूँ, मैं हर रोज जाता हूँ, तो मैं अगर अपने आप को क्लीन करके फिर घर में रूटीनली एक्टिविटी में अगर एंगेज कर देता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे डिस्टेंस रखना ही है घर वालों के साथ भी। और जो यूजेबल्स हैं, टॉवेल्स है, नैपकिन्स है, वो अलग अलग रखिए सबके, ग्लासेस भी अलग अलग रखिए। बहुत सारी चीजें हमें कॉन्शियसली करनी पड़ेगी। फिर बाहर से कुछ भी लेके आए हैं तो उसको अभी तो 6 7 8 घंटे के लिए अलग छोड़ दें, उसके बाद उसको फिर टच करके फिर ये कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस हमारी बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कितना दूर हमें इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा ये हम बता नहीं सकते। और फिर घर में, बाहर, अपनी गाड़ी में भी आपको ख्याल रखना है कि अपनी कार अगर लेके चलते हैं आप खुद की, तो अगर हो सकता है तो अकेले ही रहे, या किसी और को अगर बिठाते भी हैं तो देख ले कि उसको एक एक पीछे बैठे, एक आगे बैठे। टू व्हीलर पे एक ही आदमी जाए, ये अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ेगी। हमारे हाथ में हर वक्त कोरोना के वायरस है, ऐसा समझकर ही हमें वो करना पड़ेगा, तो ही हम इससे बच सकते हैं। हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट आपको आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो लोग मान लो कि घर में खाना पकाती हैं औरतें, और ये तो इनको भी मान लो खाना पकाने से पहले, ड्यूरिंग मेकिंग अ फूड, आफ्टर मेकिंग अ फूड, फिर खाने से पहले, खाने के बाद, फिर अगर घर में पेट रखे हैं तो उनको छूने से पहले, छूने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। फिर किसी भी चीज को मान लो कि आपने टच किया, तो ये सब चीजें आपको हर वक्त ख्याल रख के करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हमारी इम्यूनिटी और हमारा जो अच्छा है,
फिर जिंक जो है, जिंक की टैबलेट हम देते हैं, फिर मल्टीविटामिन होती है, ये सब अच्छा रहता है। फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी है जो भी हमें फायदा दे सकती है। फिर हमारा पानी जो है, हाइड्रेशन हमारे बॉडी का, वो भी हमें मेंटेन रखना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, माइल्ड रेगुलर एक्सरसाइज करे, ये सब चीजें करे, तो हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, हमारा हाइड्रेशन भी बना रहेगा। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनका एक विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको मान लो कि कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कैंसर की बीमारी है, तो ये जो लोग हैं दे आर मोस्ट ससेप्टिबल टू द इन्फेक्शन। और एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद फिर उनको क्या है कि सीवियर कंडीशन जल्दी आ जाती है, 2-3 दिन में दे बिकम सीरियस। तो ये एक चीजें रहती है। बच्चों को भी, बच्चे अभी क्या है कि खेलने भी जाते हैं, बच्चों को कितने 6 महीने से घर में बिठा के रखा है, लेकिन वो भी अब बोर हो गए, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि भाई नहीं। तो उनको भी समझा के और करके फिर भेजना पड़ता है, उसका पूरा उनको बता के। और ये जो पूरा एरा चल रहा है उससे अभी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी एंजाइटी है, बहुत सारा फियर है सब में। लेकिन सबके साथ अब चलना है, पॉजिटिविटी को बनाए रखनी है और सबके साथ हमें चलना है। फिर आता है ट्रीटमेंट का पार्ट आता है, तो ट्रीटमेंट में देखते हैं तो जिनको घर पे रख के ट्रीटमेंट की जा सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारे साथ जुड़े होंगे कि जिनको होम आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट ली होगी उन्होंने। तो घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है, माइल्ड केसेस है उनकी, लेकिन सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। सेल्फ मॉनिटरिंग, मेडिकेशंस एंड कंटिन्यूअस सुपरविजन फ्रॉम मेडिकल पर्सनल। तो 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद वो लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको ख्याल रखनी पड़ेगी अब, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में देखें तो अभी कोई इतना रिसर्च हुआ नहीं है कि भाई चलो इसकी श्योर शॉट दवा मिल गई है हमें कोरोना वायरस की, तो ऐसा नहीं है। तो अभी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रही है, और सब ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रीटमेंट है, वो करते हैं, उससे फायदा भी मिलता है, लेकिन स्टैम्प्ड आउट नहीं है। अभी लेटेस्ट में प्लाज्मा भी हम थेरापी भी दे सकते हैं, तो उससे भी फायदा होता है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक तो हमें ये प्रिवेंशन रखना ही पड़ेगा, उसके सिवा हमारे पास और कोई है नहीं। और हम लोग बोलते हैं कि जो है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, मेन चीज मैंने बोला कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ और सोसाइटी ऑल्सो। इंडिविजुअल बिहेवियर है वो चेंज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होगा तो पब्लिक में भी चेंज करना पड़ेगा, घर पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ही जीना है हमें। तो मास्क ही है जो हमारी वैक्सीन है, और हैंड वॉश है वो हमारी इम्यूनिटी है। तो ये इसके साथ फिर चलेंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि मास्क कौन सा पहने, ये अभी सबको एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मास्क हम पहने, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये सब लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मास्क, तो हम एडवाइस करते हैं ट्रिपल लेयर मास्क की। N95 मास्क जो है वो मेडिकल पर्सनल के लिए है, तो ट्रिपल लेयर मास्क पहने तो अच्छा रहता है, वो मिलता है अभी तो बाहर मेडिकल स्टोर्स में। और फिर एक आता है वो कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क जो बोलते हैं, रूटीन कपड़े का मास्क, वो भी अगर आप बाहर पहन सकते हैं, लेकिन उसका इतना नहीं है श्योर शॉट की प्रिवेंशन, वो पॉल्यूशन मास्क की तरह काम करता है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। मैं अब रैना जी से बोलूंगा कि और बताइए, आप बोलिए कि क्या है क्वेश्चन। और हेलो डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन रहा,
काफी सारी टिप्स दी है आपने। कुछ चीजें जो हमें दिमाग में नहीं थी, इनफैक्ट काफी दिनों से हम कर भी रहे थे बट अपना नहीं रहे थे। जैसे आपने घर की बात की, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, थोड़ा टाइम देना है, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। ये कुछ नई बातें हैं जो आज इनफैक्ट मेरे को तो मालूम चली हैं। आई होप बाकी लोगों को भी दिमाग में आई होंगी और इस पे जरा तामिल करेंगे, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन जिसका भी कोई इलाज नहीं है एंड अभी भी हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। सो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। इससे पहले हम सवाल सेशन पे जाएं, मेरे पास एक सवाल था आपसे। जो आपने ये कहा कि ये 14 दिन के बाद अगर सेल्फ क्वारंटाइन करें या उसके बाद या हॉस्पिटलाइजेशन में रहें तो उसके बाद कोविड का असर खत्म हो जाता है। तो सवाल ये था कि अभी ये कल की बात है, मेरे एक कुलीग का है, उसको कोविड हुआ था, कोविड पॉजिटिव निकला था। 19 दिन के बाद उसने फिर से कोविड टेस्ट किया तो फिर से उनका कोविड पॉजिटिव आया है। तो उसका क्या मतलब रहा कि वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है? नहीं, जनरली हाँ, इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस है, लेकिन इसको क्या है कि एक्चुअली री इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोविड में क्या है कि 10th डे के बाद वायरस डिटेक्शन तो हम कर सकते हैं, उसका 30 दिनों तक वायरस डिटेक्शन होता है, लेकिन वो डेड वायरस होता है। अगर मान लो कि पहले पॉजिटिव आया, उसके बाद 10 दिन बाद टेस्ट किया तो भी मान लो कि पॉजिटिव आया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि शायद वायरस है लेकिन डेड वायरस है, क्योंकि वायरस का जो है 10-12 दिन बाद डेड हो जाता है बॉडी में, सिम्टम्स चले जाते हैं। तो री इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। लेकिन मान लो कि हम लोग 14 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट को अलग दूसरे 14 दिन तक हम क्वारंटाइन रहने के लिए बोलते हैं। फिर भी उसके बाद वो अपने घर में नॉर्मली वैसे वो कर सकते हैं, वो भी मास्क पहन के। तो वायरस का जो शेडिंग है वो चालू रहता है, लेकिन 10-12 दिन के बाद नॉर्मली डेड वायरस का शेडिंग होता है, ऐसा पाया गया है। री इन्फेक्शन के चांसेस है उन लोगों में, क्योंकि एंटीबॉडीज बनती है। अगर कोविड का इन्फेक्शन हमें होता है तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप होती है, लेकिन वो एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहती है इसका अभी कुछ रिसर्च नहीं आया कि भाई 1 दिन रहती है, 2 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन ऐसे है कि एक बार होता है तो पूरी जिंदगी फिर नहीं होता, पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें मिल जाती है। लेकिन मिल जाती कोविड है। में अभी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एंटीबॉडी बनेगी तो कितने दिन तक रहेगी। तो एक ओके। ये है। मास्क पे एक सवाल है कि मास्क हम्म पहनने के बाद जो जिनकी आईसाइट पुअर है, जो चश्मा पहनते हैं, तो वो हम्म क्या कहते हैं कि उनका चश्मे पे फॉग हो जाता है, फॉग फॉग हो फॉग, जाता है। हाँ हाँ। तो दो सवाल इसमें उठ के आ रहे हैं हमारे व्यूअर के कि चश्मा पहनने में एक तो दिक्कत हो रही है, दूसरा ये जो मास्क से जो वायरस निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, तो उस पे बाहर निकलता है कि ये वो खाली भाप है? नहीं, वो खाली भाप है, क्योंकि वायरस अगर है बॉडी में और मास्क पहना है तो वायरस अगर बातें करेंगे तो बाहर निकलेगा, लेकिन मास्क का जो इनर का लेयर होता है वहां पे वो स्टिक हो जाता है, और जो ऊपर निकलता है वो भाप है, और इस वजह से चश्मे पे वो हो जाता है फॉग। तो मास्क को पहनते वक्त ये जो नोज क्लिप होती है उसको अगर अच्छे से प्रेस करके रखेंगे तो वो भाप नहीं जाता, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मान लो कि चश्मे को ऊपर नीचे करके और ऐसा करके भी मास्क को पहनना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा करने के वो ऐसा फायदा होगा। नोज क्लिप अगर आप अच्छे से प्रेस करोगे तो ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक और रिसर्च है, सिंथेटिक का एक रिसर्च कहता है कि सिल्क मास्क इज क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस बिकॉज सिल्क हैज दैट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। आपका क्या कहना है इस बारे में डॉक्टर साहब? सिल्क मास्क जो है वो मेरा अगर खुद का ओपिनियन दूं तो आई एम नॉट प्रिफरिंग सिल्क मास्क, क्योंकि मैं तो कपड़े का जो मास्क होता है उसको भी प्रीफर नहीं करता। आई ऑलवेज रेकमेंड ट्रिपल लेयर मास्क। उसका 8-10 घंटे चलता है वो, आप पहन सकते हैं, क्योंकि कपड़े का मास्क जो है वो एक्चुअली पॉल्यूशन मास्क में यूज करते हैं। और जो वायरस है, ये वायरस का जो साइज है इट्स लेस देन
0.3 माइक्रोन, तो वो जो है वो कपड़ा नहीं रोक पाता है, और सिल्क का जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं यूज कर सकता, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वेयर अ सिल्क मास्क। डॉक्टर साहब, इस बीच में क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से बड़ी नेगेटिव न्यूज आई है, कुछ हफ्ते भर से एक पॉजिटिव न्यूज आ रही थी, एवरेज केस डाउन हुए हैं इंडिया, पूरे हिंदुस्तान भर में। आपके हिसाब से क्या हुआ, रीच टू पीक और व्हाट? एक्चुअली पीक नहीं बोल सकते, केसेस बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने के बाद अभी थोड़ा स्टेबिलाइजेशन लग रहा है। मैं तो एक लोकल एरिया में, जहां अरवली डिस्ट्रिक्ट है, वहां मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ ऐसा लगता है कि अब स्टेबिलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा है। 15-20 दिन पहले पीक जैसा लगा हमको, क्योंकि अभी क्या है कि स्क्रीनिंग भी बहुत लार्ज स्केल पे करने लगे हैं, एंटीजन टेस्टिंग जो चालू कर दिया है, तो स्क्रीनिंग भी ज्यादा हो रहा है, तो केसेस निकल रहे हैं। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत घूम रहे हैं बाहर, कि जिनके अंदर वायरस है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो लाइकली और वो जाएंगे ही नहीं टेस्ट करवाने। लेकिन जब स्क्रीनिंग चलता है तो पता चलता है कि भाई इनमें भी कोरोना है, तो फिर हम उनको आइसोलेट कर देते हैं, तो उससे ऐसा होता है कि वो लोग दूसरों को नहीं दे सकते। तो केसेस बहुत बड़े हैं, ऐसा बोल भी सकते हैं। पीक अभी नहीं आया, अगर ऐसा ही चला तो पीक आएगा, क्योंकि हमारे ही हाथ में है। हम जितना इसको केयर करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, जितना कॉन्शियस रहेंगे, उतना हम इसको, मान लो कि घर में एक बंदे को हुआ, तो वो अगर अपना खुद डिसिप्लिन हो जाएगा, क्वारंटाइन की जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करेगा, तो वो दूसरों को नहीं देगा घर में, तो वो घर से वायरस चला जाएगा। लेकिन अगर उसने अगर बिहेव ऐसा किया, तो घर में दूसरे को भी देगा, फिर दूसरा तीसरे को भी देगा, और एक सोशल स्टिग्मा बहुत बढ़ गया है इसका। सोशल स्टिग्मा की वजह से नुकसान क्या होता है कि लोगों में डर बैठ गया है कि भाई मुझे कोरोना हुआ ऐसा पता चलेगा तो लोग मेरे से दूर भागेंगे। तो सोसाइटी में इस वजह से भी लोग आगे नहीं आ रहे टेस्टिंग करवाने के लिए, कि भाई छुपा के रखते हैं। चलो सिम्टम्स भी आती है तो भी लोग छुपाते हैं, बिना सिम्टम्स वालों की तो बात नहीं है, लेकिन जिनको मान लो कि सिम्टम्स है वो भी छुपाते हैं कि टेस्ट करवाएंगे पॉजिटिव आएगा तो लोगों से हमें किनारा करना पड़ेगा, लोग हमसे दूर भागेंगे। तो ये सब सोशल स्टिग्मा एक बहुत बढ़ गया, तो ये भी नुकसान है कम्युनिटी को, कि सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये कोई ऐसा डिसीज है नहीं कि ऐसा हो गया, तो सोशल स्टिग्मा अभी दूर करना पड़ेगा कम्युनिटी से। ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई सोशल स्टिग्मा की। इसके साथ आज की डेट में एक सवाल भी आया हो उसके लिए, एक कोरोना एंजाइटी की वजह से बहुत सारा डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, और उस एंजाइटी की वजह से बाकी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में, जो कोरोना एंजाइटी आती है? हाँ, डेफिनेटली जो एंजाइटी और फियर, ये दो चीजें, एक तो टेस्टिंग करवाने जब निकलता है इंसान, तो पहला तो उसका फियर ये था, अगर पॉजिटिव आया तो ये लोग 10 दिन के लिए मुझे डाल देंगे हॉस्पिटल में, 14 दिनों के लिए, ये फियर रहता है। अगर हॉस्पिटल में नहीं डालेंगे तो मुझे घर में बंद हो जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फियर है। उसके बाद जब आइसोलेशन में रहते हैं, क्योंकि कभी रहे नहीं होते, 10 दिन अकेले रहना है, क्या करे ये पता नहीं होता। पहले 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, मुझे कोरोना हो गया, अब क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। तो पहले तो ये 2 दिन ये फियर रहता है, फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं चलो। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि जो लोग आइसोलेशन में है, जो लोग क्वारंटीन है, जो लोग हॉस्पिटल में है, इन सबको अपना जो रूटीन है वो सेट करना पड़ता है। उनकी जो एंजाइटी है उसको वो खुद ही ओवरकम कर सकते हैं। पॉजिटिव चीजें करनी है, बुक्स पढ़नी है, या घर पे पूरा दिन उनका अपना रूम में रहे तो शेड्यूल बना देने का, भी सुबह उठ के अपना वो खत्म करके फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर बुक्स पढ़े या कुछ अच्छी मूवीज देखे पॉजिटिव, या टेलीफोन पे अपने रिलेटिव से सबसे बात करे। तो अपने आप हमें मोटिवेट होके, सेल्फ मोटिवेशन अभी बहुत कम लगता है, सेल्फ मोटिवेट होके, क्योंकि हम लोग, मेरी जो हॉस्पिटल है वहां भी हम लोग बाहर से फोन करके दर्दी और पेशेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है अभी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। आपने साथ में एक सवाल, अभी फिजिकल एक्सरसाइज की बात की, एक सवाल पूछा गया है, क्या मास्क पहनते हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
नहीं, मास्क पहन के एक्सरसाइज करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, और जो एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस वक्त अगर मास्क पहना होगा तो रीब्रीदिंग करके वही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, तो उस वजह से ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए मास्क पहन के एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। आप अपने अलग से अलग रूम में हैं, अकेले हैं, तो बिना मास्क के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक और चीज माना जा रहा है कि बड़े बुजुर्ग और बच्चों का आज की डेट में हम बोल रहे हैं बाहर जाना मना है, और मना भी कर रहे हैं। अब अनलॉक 4 के बाद में सब कुछ खुल रहा है, तो इसमें एक और डर नया चीज पैदा हो रहा है, जो एक सवाल भी आया है कि जहाँ पे स्कूल खुलने की उम्मीद है, आपका क्या कहना है? विद मेनी सीनियर स्कूल ओपनिंग, क्या टीचर्स गोइंग टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग, और हाउ दे आर गोइंग टू एड्रेस द थिंग, क्योंकि मास्क पहन के बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्लैरिटी ऑफ साउंड बड़ा मुश्किल है। आपका क्या कहना है इसमें? स्कूल अभी तो कब खोल सकते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो वी डोंट नो क्या होगा उसका टर्न आउट। लेकिन स्कूल अगर खुलते भी है तो स्कूल में बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि मास्क बच्चे एक तो पहने ना पहने ये हम गारंटी नहीं दे सकते। टीचर्स जो है वो भी, उनको भी मास्क पहन के फिर पढ़ाना पड़ेगा, वो भी सही है, क्योंकि जब बोलता है बंदा, इंसान बोलता है तो सबसे ज्यादा वायरस निकलता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है तो वायरस निकलता है। और स्कूल में 4-5 फुट का डिस्टेंस हर एक बच्चे के बीच बनाए रखना, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, सुबह जब जाता है तब से लेके छूटता है तब तक, ये बहुत ही मुश्किल रहेगा। टीचर्स को भी मान लो कि पढ़ाना है तो मास्क के साथ पढ़ाने में उनको भी दिक्कत होगी। आवाज भी बच्चों को मान लो कि अच्छे से नहीं आएगी। बहुत सारी स्कूलें हैं जहाँ पे माइकिंग सिस्टम्स और ये सब होता है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ माइकिंग सिस्टम्स और ये सब नहीं है वहाँ दिक्कत रहेगी। तो स्कूल खुलने के बाद तो उसकी पूरी एडवाइजरी बनानी पड़ेगी, फिर एडवाइजरी आएगी उस हिसाब से फिर कर सकते हैं। और अभी छोटे बच्चों के लिए तो है ही नहीं, अभी तो 10th और 12th के बच्चों के लिए सोचेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत रहेगी, बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। डॉक्टर साहब, जो आपने इससे पहले सवाल का जवाब दिया था, मास्क एक्सरसाइज के समय यूज नहीं करना चाहिए, सवाल अभी एक व्यूअर ने भेजा है कि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे हमें मास्क लगाना चाहिए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये भी उठता है कि आजकल जिम खुल गए हैं, तो जिम में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो हो रही है, बट वहां पे बहुत सारे लोग एंक्लोज्ड चेम्बर में रहते हैं, तो उस टाइम मास्क के बिना कैसे किया जाए? एक तो तो ये आपका जो सवाल है मॉर्निंग वॉक में मैं एडवाइज नहीं करता मास्क पहन के मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्योंकि वही चीज आती है, वहां भी एक्सर्शन होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वही वही रीब्रीथ होगा, तो उससे क्या है कि हाइपर कैप्निया का एक डर रहता है। तो बेटर आप जब भी वॉकिंग करते हैं, मान लो कि मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, 5-6 किलोमीटर आपको चलना है, तो बिना मास्क के ही जाए और अलग अलग जाए। मान लो कि जो ग्रुप में निकलते हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं कर सकते। और हो सके तो ऐसी जगह पसंद कीजिए जहाँ बहुत कम लोग हो। गार्डन्स तो अभी बंद है, तो गार्डन्स में तो कोई जा नहीं सकता, तो ऐसी प्लेसेस आप पसंद कीजिए कि जहाँ पे बहुत कम लोग हो और वहां आप आराम से चल सकते हैं, 6-7 फुट की दूरी रख के बनाए रख के। फिर अगर आप जिम्स की बात करें तो जिम में आप सही बताया कि जो एसी जिम्स होते हैं वहाँ एनक्लोज चैम्बर होता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिम के सभी इंस्ट्रूमेंट को हर बार तो मान लो कि सैनिटाइज करना या डिसइंफेक्शन करना, ये मैं नहीं मानता कि हो पाता होगा। तो हो सके तो घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए। अभी अभी 6 महीना मान लो कि जिम नहीं करेंगे तो चला सकते हैं बिना जिम के। घर पे हम मैनुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिम में हम जाते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे आगे वाले ने जो यूज किया है, तो उसमें कोरोना का वायरस है भी नहीं या नहीं ये पता नहीं है हमको, तो हमें ऐसा ही मान के चलना है कि वो उसमें भी था ही। तो जिम अवॉइड ही करना मैं तो बेटर मानता हूँ कि अगर अवॉइड करे और घर पे ही एक्सरसाइज कर ले तो वो अच्छा है। अगर जाना हुआ तो वो जिम का जो प्रोटोकॉल है उसमें भी एडवाइजरी तो है ही
कि आप जो 2 बैच में एकोमोडेट करते थे उसको 4 या 5 बैच में एकोमोडेट कीजिए, और इस हिसाब से प्रिकॉशन रख के आप कर सकते हैं। मास्क तो जिम में तो पहनना पड़ेगा क्योंकि अनक्लोज चैम्बर है, एसी चालू है, तो मास्क पहन के ही करनी पड़ेगी जिम में, उसके सिवा ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, मास्क की बात चल रही है, एक सवाल आया, शिवानी जी ने पूछा, सर हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वी यूज रीयूजेबल मास्क? रीयूजेबल मास्क जो होते हैं उसको आप साबुन वाले पानी से, डिटर्जेंट से धोने के बाद किस मटेरियल का है मास्क उस पे डिपेंड है, तो उसको धो सकते हैं आप और यूज कर सकते हैं। 6-7 घंटे पहन सकते हैं आप, 6 या 7 घंटे, या अच्छी क्वालिटी के मास्क है तो जितनी भी बार आप बाहर जाके आए तो बेटर है कि उसको वॉश के लिए डाल दीजिए। डॉक्टर साहब, इसका माने कि जो N95 मास्क हैं, FFP1 है, FFP2 है, उनको भी हम धो के यूज कर सकते हैं कि वो वन टाइम यूज है, इंक्लूडिंग सर्जिकल मास्क या 3 लेयर मास्क? क्योंकि अक्सर लोग देख रहे हैं कि रीयूज करते हैं धोने के बाद। सो इज इट ओके टू यू रीयूज देम? मास्क की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मान लो कि जो फिल्टर वाले मास्क आते हैं N95, जो फिल्टर चेम्बर होता है वो हम रीयूज नहीं कर सकते। फिर मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है जो पॉजिटिव आइसोलेशन वार्ड में काम करता है वो लोग रीयूज नहीं कर सकते, उनको हम नहीं रीयूज करने देते, वो 8 घंटे के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते। जो सर्जिकल मास्क कपड़े का आता है उसको आप धोने के बाद रीयूज कर सकते हो, बाहर जाके आने के बाद तुरंत ही उसको वॉश में डाल देने का। ट्रिपल लेयर मास्क जो होता है उसको हम धो के रीयूज नहीं कर सकते, वो 6-8 घंटे की उसकी जो होती है लाइफ उतना ही यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक बार बाहर जाके आए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो मास्क की अगर 8 घंटे की है तो फिर बाकी के 6 घंटे हम दूसरी बार चल लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार जाके आए तो वो मास्क को आपको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। ओके। सवाल है, रमेश जी ने पूछा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो इनकी उम्र है 53 इयर्स की, 53 साल की है। तो इनकी वाइफ जो है, माय वाइफ 51 इयर्स वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव ऑन 5 सितंबर को, और ये खुद और इनके सन है 22 इयर्स ओल्ड, he was tested positive on 10th or 11th September को, although symptoms started on 7th of September and 9th of September respectively, और इन सब ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। By the grace of God, our daughter 16-year-old was tested negative. She was completely isolated. I still get a fever up to 99 in once a day from 11 a.m. to 1:30 p.m. and without taking any medicine, paracetamol, etc. Fever gets back to normal after that. इन लोगों ने आइसोलेट अपने आप को किया। We also isolated the helpers till 26 September. वो 4 फैमिली मेंबर है हेल्पर्स, मेल एंड वाइफ। Separately, they live in a separate quarter attached to with their quarter. They were also tested negative 5 September को। अब ये एडवाइस मांग रहे हैं आपसे सर। Now please advise whether we should allow them to work in our home with proper mask and whether our family can now dine together. 5 सितंबर का जो है तो अभी तो मान लो कि 27 है, तो ऑलमोस्ट 22 डेज जैसे हो गए हैं। तो विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर मास्क और ये सब हाइजीन, दे शुड अलाउ, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंसिंग मेन है, डिस्टेंसिंग रखना है 6 फुट का। डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा है जिसमें पूछा गया है कि जो BCG का टीका है तो वो क्या बचाव करता है कि वो एक खाली एक मिथ है? नहीं, वो मिथ ही है। BCG का टीका इसमें कोरोना में बचाव नहीं कर सकता। और अब जो सर्दियां आ रही हैं, अगर आप ध्यान दें, शुरू में बात किया गया था कि गर्मियां आएंगी तो वायरस चला जाएगा। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो इससे फ्लू बढ़ेगा कि कंट्रोल में रहेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लू जो है, इसके जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है फ्लू लाइक है, और जो ओरिजिनल फ्लू के भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस और ये सब, तो सर्दियों में इन्फ्लुएंजा वायरस का स्प्रेड ज्यादा रहता है। तो सर्दियों में
केसेस तो आएंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस के भी आएंगे और इसके कोरोना के भी आएंगे या बंद हो जाएंगे, ये कह नहीं सकते। तो केसेस बढ़ सकते हैं, फिर डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को भी परेशानी रहेगी कि ये कॉमन फ्लू है या कोरोना का फ्लू है। तो बिल्कुल सही। और हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं लोग। वो फ्लू वायरस जो भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी इसी तरह से फैलता है, उसका भी जो है मोड ऑफ एंट्री बॉडी में यही है। तो कोरोना से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस रख रहे हैं, उस प्रिकॉशन से हम फ्लू से भी बच सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से है ये। एक कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा वायरस को कैसे इफेक्ट करती है? कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। विटामिन डी क्या है कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है। तो विटामिन डी अगर अच्छा है बॉडी में, तो हमारा कुछ रक्षण हो सकता है वायरस से। इम्यूनिटी ओवरऑल जो हमारी अगर ज्यादा है, तो हमें क्या है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी लगेगा, तो सिम्टम्स डेवलप जो होते हैं उसमें शक्यता है कि कम हो। विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है हिंदुस्तानियों में विटामिन डी की काफी कमी है। तो विटामिन डी की विटामिन डी बढ़ाना चाहिए। शुड दे गेट टेस्टेड फॉर विटामिन डी? नहीं, उसके लिए अलग टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि विटामिन डी अच्छा है तो कोरोना नहीं ही होगा, ऐसा तो है नहीं। तो विटामिन डी का टेस्ट करवाना नहीं जरूरी है इसके लिए। तो जिनके यहाँ पे विटामिन डी जिनका कम है, आर दे मोर प्रोन टू द डिजीज? हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है। तो हो सकता है कि दे मे बी प्रोन टू डिसीज। शिवानी जी का एक और सवाल है। इन अवर सोसाइटी चिल्ड्रन have start coming out for playing. Should they be allowed? Also, shall children be allowed to use the playing swings? ये जैसे हमने बात की कि बच्चों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। 6 महीने से हमने उनको घर पे बिठा के रखा है, तो दे आर डिमांडिंग कि भाई हमें खेलने जाना ही है। तो बेटर है कि उनको खेलने तो देना ही पड़ेगा। तो एक दो क्या है कि रखने पड़ेंगे सुपरवाइजर्स। मान लो कि पेरेंट्स है, तो वो अगर नीचे रहे उनके साथ और उनको स्टोरी बना के या कुछ भी करके ऐसे समझाए, ये प्रिवेंशन ऐसे करते हैं ये सब। और एक कॉमन चीजें मत यूज करने दे उनको। मानो कि पानी की बोतल है, स्नैक्स के जो डिब्बे हैं, साइकिल्स जो है वो खेलते हैं, वो एक बच्चा दूसरे बच्चा तीसरा बच्चा एक ही साइकिल को चलाएगा। कॉमन मान लो कि वो होते हैं प्लेइंग्स के जो साधन, उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए या उनको बारी बारी ऐसा साफ क्लीनिंग करने के लिए, ये सब ख्याल रखना पड़ेगा। उनको खेलने के लिए हमें एनवायरमेंटल जो है वो पूरा पाड़ेंगे। एनवायरमेंट अगर अच्छा, तो खेल सकते हैं प्रिकॉशंस के साथ। एक किरण जी का एक और सवाल आ रहा है, जो अभी मास्क के बारे में पूछे थे, वॉक के टाइम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो पूछना चाहते हैं कौन सा मास्क हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में N95 भी है, FFP1 भी है, FFP2 भी है, सर्जिकल भी है, क्लॉथ मास्क भी है। क्लॉथ तो आपने वैसे मना किया है, सिल्क भी आपने कुछ अहमियत नहीं दी है। तो कौन सा मास्क जनरल पब्लिक को यूज करना चाहिए? सर्जिकल मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क। N95 की जरूरत नहीं है जनरल पॉपुलेशन को। सर्जिकल मास्क जो होते हैं और ट्रिपल लेयर मास्क आते हैं, वो यूज कर सकते हैं आप आराम से। ओके। एक सवाल है कंवल पेशेंट साहब का। ये कह रहे हैं कि इज इट ट्रू दैट वायरस हैज बिकम वीक नाउ? जैसे आपने भी बोला, बड़े माइल्ड केस तो बहुत सारे आ रहे हैं आज के लिए। हाँ, वायरस का मैं अपना अगर देखूंगा तो मैंने अभी तक 600 के करीब पेशेंट्स यहाँ पे हमने किए हैं। तो पहले से सीवियरिटी थोड़ी वीक हुई है ऐसा लगता है। अभी डेथ्स भी थोड़ा रेशियो कम होता लग रहा है धीरे धीरे, और रिकवरी के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो वायरस का जो विरुलेंस है वो शायद वीक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पंकज जी, आपके पास पानी 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 क्या हेल्प कर सकता है वायरस को फ्लश आउट करने से? सवाल ये है कि अगर ज्यादा पानी पिए तो क्या हेल्प कर सकता है वायरस को फ्लश आउट करने से? पानी पीने से वायरस तो फ्लश आउट नहीं होगा, लेकिन पानी पीने से क्या है कि हमारे बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। आपको दिन का 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी
और अकेला पानी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पानी फ्रिज का नहीं पीना है। पानी हमें जो भी पीना है पूरे दिन में, वो एकदम ल्यूकवार्म वाटर अगर पिएंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर हॉट वाटर गार्गल भी करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। एक सवाल ओके हाँ। राहुल, एक सेकेंड, मैं ये सवाल लेता हूँ, फिर उसके बाद आप पूछिए। सवाल यह है कि फ्लू अगर दोबारा आ सकता है तो कोविड कोविड भी हो सकता है क्या? क्योंकि आजकल कुछ केसेस हमने नोट किए हैं, जो अखबारों में भी आए हैं, 2 या 3 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कि कोविड रिलैप्स के। हाँ, रिलैप्स के मैंने बोला ना कि मान लो कि आपको कोविड हुआ तो एंटीबॉडी अगर डेवलप हुई है, लेकिन वो एकदम शॉर्ट लाइफ के लिए अगर हुई है, तो आपको 15 दिन 1 महीने के बाद अगर आपसे फिर से एक्सपोज होते हैं वायरस से, तो यू मे गेट रिपीट इन्फेक्शन। तो ऐसा तो, हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट जो रिकवर हुआ है, जैसे हमने देखा 82% लोग रिकवर हुए हैं, तो हम्म। उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्टिल दे हैव नहीं टू टेक नहीं, ऑन दोस हाँ, प्रिकॉशंस। यस यस यस, नॉर्मल जो प्रिकॉशंस है वो उनको लेना ही है, और उनको तो और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेने हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं अभी कि जो लोग रिकवर होके जा रहे हैं उनमें अगर इम्यूनिटी कम है, तो उनका जो लंग का कैपेसिटी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो दे हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज अपने फेफड़ों के लिए। उनको रेगुलर एक्सरसाइज भी हम एडवाइस करते हैं कि अभी 2-4 महीने तक आप अपने लंग्स के लिए विशेष एक्सरसाइज करते रहिए। तो क्या है कि लंग्स फंक्शन जो है वो ऑल्टर ना हो या कम ना हो। तो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, और उसके लिए एक तो सिंपल हम बलून्स जो होते हैं, वो बलून्स अगर दिन में 10-15 बार बलून्स फुलाएंगे तो वो हो जाएगा। और एक स्पाइरल राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को ही रिपीट करना पड़ेगा, आपका वीडियो और ऑडियो आउट चला गया था, बलून का जो आप कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो जो लोग मान लो कि रिकवर होके जाते हैं यहाँ से, हमारी हॉस्पिटलाइज होके है, फिर घर जाते हैं, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप लंग्स के लिए स्पेशल अलग से एक्सरसाइज करें 2-3-4 महीने के लिए। वो सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप जैसे बलून्स फुलाएंगे दिन में 5-10 बार, अगर अपने सिंपल जो बलून्स आते हैं बच्चों के खेलने के लिए, वो बलून्स फुला सकते हैं। और एक स्पायरोमीटर करके आता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, मिलता है मार्केट में, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपके क्या है कि लंग्स फंक्शन जो है वो वीक नहीं हो सकते उससे। आरती जी ये पूछते हैं, ये does immunity boosters in market help? इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से आप ले रहे हैं उस पे डिपेंड्स है। मल्टीविटामिन तो हेल्प करती है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाती है। विटामिन सी जो है वो आपको खास लेना चाहिए। और एक जिंक जो है, जिंक का टेबलेट आता है, वो आपको लेना चाहिए। और आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आते हैं 1-2, वो आपको हेल्प करता है। एक शमशमनी वटी करके आती है, वो गोली हम देते हैं सबको, तो उससे भी हेल्प मिल जाती है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए स्पेशली। So, आपका कहने का मतलब है सब लोगों को जिंक की टेबलेट लेनी चाहिए और विटामिन की गोलियां लेनी चाहिए, ये इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। हाँ, विटामिन सी जो है, और विटामिन ये जिंक और ये विटामिन है सी, हाँ। हाँ, मैं बताता हूँ। जिंक जो है वो मेडिसिन है, ओके। थेराप्यूटिक भी है और प्रिवेंटिव भी है। तो जिंक हर रोज आप नहीं ले सकते। मान लो कि 10-15 दिन का कोर्स कर लिया, फिर 10-15 दिन गैप कर दीजिए, फिर 10-15 दिन ले लीजिए। विटामिन सी जो है वो नेचुरल है। वो अगर टेबलेट हर रोज लेंगे तो एक वो प्रकृति होती है कि हर रोज गोलियां क्या लेनी। तो इससे बेटर है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो हर सुबह शाम अगर नींबू का एक ग्लास शरबत बना के पियेंगे तो भी चलेगा। विटामिन सी जाना चाहिए। जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन जूस होता है, ऑरेंजेस होती है, जिसमें विटामिन सी मिलता है हमें अच्छी मात्रा में, वो हमको अभी ज्यादा लेने चाहिए, तो गोलियां नहीं लेनी पड़ेगी। डाइट में विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, ये एक हाँ निष्कर्ष निकल रहा है। नींबू पानी पीना चाहिए, रेगुलर पीजिए, ज्यादा पीजिए,
बट रेगुलर पीजिए। दवाइयों पे निर्भर कम रहिए। जो जिंक की गोलियां हैं वो 15 दिन खा सकते हैं, फिर उसके बाद गैप 15 दिन का देना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रिकॉशंस और दैट वन कैन टेक एक्चुअली एट होम। तो इसके लिए कोई एज लिमिट भी है? बच्चों के लिए भी सेम प्रेस्क्रिप्शन है, बड़ों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी? बच्चे जो 10 साल से कम है उनके लिए सेम प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। उनको क्या है कि जिंक लेना है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस, तो डॉक्टर अगर एडवाइस करता है दिखा के एक बार। राहुल जी, आपके पास कोई सवाल है? नहीं, अभी तो कोई सवाल नहीं है। एक शिवानी जी कह रहे हैं कि पतंजलि ने कुछ मेडिसिन लॉन्च किया कोविड के लिए, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मेडिसिन अभी कोविड के लिए नहीं है ऐसी कोई कि जो श्योर शॉट है कि ये मेडिसिन से कोरोना वायरस को हम मार सकते हैं, ऐसा नहीं। सो व्यूअर्स के लिए एक चीज बोले, कोई भी प्रेस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। विटामिन सी की जो बात कर रहे थे, आप होमली मेड या नेचुरल मेड होम विटामिन सी लें। और जिंक की बात जो कर रहे थे, आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर यू टेक एनी जिंक टेबलेट्स आल्सो। So these are the some of the things that you can actually advise or take the advice from the doctors. राहुल जी, आपके पास I have a question which has come in. ये आपने भी बच्चों की बात करी है डॉक्टर साहब, हमने जवानों की बात करी है, बात है बुजुर्गों की। स्पेशली जो 65 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं उनको वही जो 10 साल से नीचे बच्चों के लिए रूल है वही है। मगर बुजुर्ग भी अब काफी देर से बंद हैं। किसी बुजुर्ग से मैं बात कर रहा था, बोला था मैं छत पे चल चल कर परेशान हो गया हूँ। और ये छत तो हर जगह अवेलेबल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तब छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं जहाँ बुजुर्ग रहते हैं। तो अब अगर उनको निकलना चाहिए तो निकलना तो पड़ेगा ही। और अगर निकलना चाहिए तो क्या एहतियात लेकर निकलना चाहिए? उनको सही बात है आपकी कि निकलना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत 6, 7, 8 महीने से घर में बंद है। और हमारा वो भी है कि बुजुर्ग ही मोस्ट ससेप्टिबल है ये इन्फेक्शन के लिए। तो अगर निकलना ही है तो अर्ली मॉर्निंग निकले। एक तो जब बहुत कम आवाजाही हो लोगों की, और अपने ही जो स्कीम्स है जहाँ रहते हैं, मोहल्ले है, गली है, वहाँ लोकल में थोड़ा बहुत घूम सकते हैं सुबह सुबह। और बाहर जाने के बाद कोई भी ऐसी चीज मान लो कि गए तो जाके सीधा घर ही आना है। कहीं बैठ के मान लो कि गपाटे सपाटे लड़ाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। कॉमन जो भी यूटिलिटीज है उनको यूज नहीं करनी है। और जाने के और आने के बाद जो भी रूटीन प्रिकॉशंस है, मान लो कि हाथ धोने हैं साबुन से और मुंह धोना है अच्छे किसी साबुन से, ये सब चीजें। मैं तो हाथ को, हैंड वॉश को जितना इम्पोर्टेंस मानता हूँ उतना ही फेस को भी मानता हूँ कि फेस को भी आपको दिन में 3-4 बार वॉश करना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन लेके बुजुर्ग जा सकते हैं, सुबह सुबह जा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उनको जाना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन कम हो बाहर। डॉक्टर साहब, रॉक्सी रैना जी ये पूछ रही है कि गिलॉय टेबलेट्स जो पतंजलि से मिलते हैं, कौन से? क्या उनको गिलॉय टेबलेट? गिलोय के? उसके हाँ साथ हाँ एक हाँ और सवाल है आरती जी का, रिलेटेड है हल्दी और तुलसी। हाँ। हाँ, हल्दी और तुलसी तो सही है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करती है, लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं उसका। लेकिन कोई रिसर्च डेटा नहीं है कि भाई इससे इतना फायदा होता ही है। लेकिन हमारे वो ग्रंथों में भी लिखा है, जब जगह लिखा है कि तुलसी का जो काढ़ा होता है, तुलसी, आदू और ये सब, तो ये फायदे करते हैं रेस्पिरेटरी, स्पेशली जो गले के माध्यम से जो रेस्पिरेटरी वायरसेस जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी में थोड़ा बूस्टअप मिलता है। गिलॉय? गिलोय का तो कुछ मुझे भी नहीं पता। एक और इम्पोर्टेंट सवाल आया, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि हाउ कैन अ पर्सन डिफरेंशिएट बिटवीन विविड एंड नॉर्मल फ्लू? और इसके साथ एक और सवाल है, आज की डेट में डेंगू भी बहुत फैल रहा है, तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर ले और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? हाँ, ये हम डॉक्टरों के लिए भी दिक्कत है कि अभी डेंगू और ये कोरोना, दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन होता है जब पेशेंट आता है तो पता ही नहीं चलता कि ये 2-3 दिन बाद कोरोना की तरफ जाएगा।
क्योंकि सिम्टम्स सबके एक जैसे ही है, फीवर आता है, बॉडी एक होता है, जबरदस्त फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। तो ये आपको मान लो कि आज हुआ, कल हुआ, दूसरे दिन के बाद आपको तीसरे दिन वेट नहीं करनी है। मैं तो बोलता हूँ कि दूसरे ही दिन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो क्या है कि रूटीन हम लोग कॉमन फ्लू होता है जो इन्फ्लुएंजा का, उसमें हमारे जो ब्लड्स के पैरामीटर्स है वो इतने ऊपर नीचे नहीं होते। तो हम लोग पहले ही ब्लड का टेस्ट करवा लेते हैं, उसमें 3-4 चीजें हैं जो देखनी है, तो वो देख के हमें पता चलता है कि ये कॉमन फ्लू है कि वो कोरोना की ओर जा रहा है। तो एक ये चीज है, तो डॉक्टर को कंसल्ट तो कर ही देना चाहिए। ठीक है पंकज जी, आपके पास कोई एक सवाल? सवाल आया है, सवाल ये है कि जो सब्जियां हैं तो उनको गर्म पानी से धोना बेटर है कि इनको साबुन के पानी से धोना बेटर है? साबुन के पानी से अगर धोते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जो लिपिड लेयर है वो साबुन के पानी से ही चला जाता है। तो एक बार साबुन के पानी से, फिर 2-3 बार वो आप गर्म पानी से धोएंगे तो चलेगा। ऐसा कर सकते हैं आप। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर थोड़ा समय हम सब्जियां बाहर से लाने कर खाए, उससे ज्यादा है कि घर में ही जो ग्रेन्स है और ये सब है, तो मान लो कि उसका अगर यूज बढ़ाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। हो सके उतना बाहर से कम चीजें लानी पड़े, इस तरह से आपको अभी आपका फूड भी मैनेज करना पड़ेगा। सवाल अब उठता है नॉन वेजिटेरियन वालों की तरफ से अब, तो उनके लिए आपका क्या है संदेश? नॉन वेजिटेरियन के लिए तो पहले तो अवॉइड करें अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता तो फिर जो भी मैं तो प्योर वेज हूँ इसलिए इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ज्यादा कुक किया हुआ फूड अगर खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और अवॉइड करें तो उससे भी अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे पास सब सवाल तो अभी एक सेकेंड में एक बार और चेक कर लेता हूँ। मानूरी से आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप प्लीज टेक ऑन कीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। Thanks, Dr. Saab, for enlightening us with your valuable inputs. It will go a long way. और आपने हमको ज्वाइन किया, आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया। आई थिंक अभी सवाल अभी कुछ और नहीं आ रहे हैं, बट जो भी सवाल आ रहे हैं आएंगे आगे, ऑब्वियसली हम आपसे वापस उसके बारे में पूछेंगे। थैंक्स, आपने पहले टाइम अपना निकाला और हम सबको अपने इनपुट से अवगत करा दिया। पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इनसाइट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। कुछ नई बातें पता चली हैं तो हो सकता है लोग उस पे तामील करें और इस सिचुएशन से हो सके जल्दी से जल्दी बाहर निकल आए। थैंक यू सर। ओके।